زبان مر نہیں رہی ہے، اور دنیا کی 10 بڑی زبانوں میں سے ایک زبان ہے اردو. آپ مرنے کی بات کر رہے ہیں، مر نہیں رہی ہے، مر نہیں، اردو زندہ ہے، اردو زندہ ہے، اردو زندہ ہے. سب کی آواز میڈیا نیٹ ورک میں آپ کا استقبال ہے. اردو مر نہیں سکتی، زندہ تھی، زندہ ہے اور زندہ ہی رہے گی. ان خیالات کا اظہار شہر اورنگ آباد کے تاریخی ڈاکٹر رفیق زکریہ کیمپس میں مراٹھواڑہ کالج آف ایجوکیشن کے زیر اہتمام قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان حکومت ہند کے تعاون سے ایک روزہ سیمینار بعنوان جامعاتی سطح پر اردو کی تدریس، مسائل و امکانات میں پروفیسر شفیع ایوب، پروفیسر JNU نے کیا. اس موقع پر ڈاکٹر عبداللہ امتیاز نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا، اپنا مقالہ پیش کیا. اس ایک روزہ سیمینار کا افتتاح اور کلیدی خطبہ پروفیسر سید محمد انور عالم نے پیش کیا. ڈاکٹر عبداللہ امتیاز کے علاوہ پروفیسر محمد سمیع صدیقی نے اردو کی تدریس سے متعلق مقالہ پیش کیا. اس ایک روزہ سیمینار کی کنوینر پروفیسر نوید السحر اور کوآرڈینیٹر ڈاکٹر ذکی الدین سہیل نے اس سیمینار کو کامیاب بنانے میں اہم رول ادا کیا. دیکھیے اس ایک روزہ قومی سیمینار کی جھلکیاں. پروفیسر شفیع ایوبی کا بیان اور پرنسپل پروفیسر نوید السحر کا بیانات. ہے کہ اپنے آپ لوگوں کو کھینچتی ہے، بس ہم کو ذرا سا محتاط ہونے کی ضرورت ہے. وہ محتاط اگر ہم ہو گئے اور ہم نے اپنا کام صحیح ڈھنگ سے انجام کیا، زبان مر نہیں رہی ہے. اور دنیا کی 10 بڑی زبانوں میں سے ایک زبان ہے اردو. آپ مرنے کی بات کر رہے ہیں، مرنے کی بات زبان کی وہ ہو رہی ہے جو انڈمان نکوبار میں مر رہی ہے، جس کو بچانے کے لیے خود ہماری پروفیسر انویتا اپی کا نام سنا ہوگا، یہ جانتے ہیں، عبداللہ امتیاز صاحب جانتے ہیں، بہت بڑی لنگوسٹکس کی پروفیسر ہیں. بھارت سرکار نے ایک پروجیکٹ بنا کر کے پروفیسر انویتا اپی کو وہاں بھیجا. انڈمان نکوبار میں ایک ایسی جن جاتی ہے، ایک ایسا قبیلہ ہے جس کے چند افراد بچے ہیں، وہی وہ زبان جانتے ہیں. وہ زبان ختم ہو گئی، تو اس کو انڈیجر لینگویج نہیں ہے بھائی اردو. ہاں یہ ضرور ہے اردو کے مسائل ہیں، تو میں تو اردو کے مسائل پہ نہ بات کر کے اردو تدریس کے جو مسائل تھے اس پہ بات کی کہ تلفظ یا املا یا قواعد کی اور ادائیگی کے مخرج کی باتیں تھیں. تو یہ تھے مسائل. اب امکانات پہ میں 1 منٹ میں ایک بات کہہ دیتا ہوں. وہ بات یہ ہے کہ اردو تدریس کے حوالے سے امکانات بھرپور ہیں. تو مجھ سے کئی لوگ کہتے ہیں یار تم صرف مثبت باتیں کرتے ہو، بہت زیادہ پازیٹیو ہو. میں نے کہا صاحب پیدائشی طور پہ میں پازیٹیو ہوں، بی پازیٹیو میرا بلڈ گروپ ہے، میں ہوں ہی پازیٹیو. کیا کروں میں اس کے لیے؟ میں نگیٹو باتیں بھی ہیں، میں اس کو ذرا نظر انداز کرتا ہوں، اب پازیٹیو باتوں پہ دھیان دیتا ہوں. تو لوگوں نے کہا کہ نگیٹو بھی دیکھ لیا کیجئے ورنہ ایسا نہ ہو کہ وہ کینسر بن جائے. ہم نے کہا بالکل وہ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ لیجئے، لیکن میرا زیادہ دھیان پازیٹیو باتوں پہ رہتا ہے. ابھی جو نئی ٹیکنیک آپ کے پاس آئی ہے، آپ اسکائپ کے ذریعے پڑھا رہے ہیں، آپ تمام اسٹریم یارڈ آ گیا آپ کے پاس، فلاں زوم آ گیا، فلاں آ گیا، کر رہے ہیں. مجبوری تھی، آپ اس کے ذریعے کر رہے ہیں. وہ اس کو اپنے حق میں پھیر لیجئے، اس کو اپنے حق میں کر لیجئے. میں نے صوتی اس کی بات کی تھی، ڈکشنری کی بات کی تھی. بہت کوششوں کے باوجود صوتی ڈکشنری ہمارے یہاں اردو میں اسٹینڈرڈ ڈکشنریز نہیں بن سکی، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اس پہ کام ہو رہا ہے، کام چل رہا ہے. انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں 2021 میں ہی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ابھی نام ڈسکلوز نہیں کیا ہے، اور یہ دیکھیے کہ لندن سے لوگ اس پہ کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں اور وہ اپنی جیب سے کر رہے ہیں. میں جانتا ہوں ذاتی طور پہ، اور اللہ نے ان کو دیا بھی ہے اور دل بھی دیا ہے. کہہ رہے ہیں اردو کے لیے ہم کر رہے ہیں، بولے 2-4 کروڑ خرچ کر لو، ہے ہمارے پاس، ہم دے رہے ہیں، کر رہے ہیں. تو وہ کام بہت بڑے پیمانے پہ چل رہا ہے. آپ کو اپنی موبائل پہ آپ کسی لفظ کا صحیح تلفظ کیا ہے وہ آپ کو مل جائے گا جانے کے لیے. ایک لفظ بجوکا کہہ سکتے ہیں، بجوکا کہہ سکتے ہیں. پڑھنے والے کی غلطی نہیں ہے، وہ دونوں طرح پڑھ سکتا ہے، اس کی کوئی غلطی نہیں. پہلی بار سن رہا تو ایسا پڑھ سکتا ہے، ممکن ہے. لیکن اب وہ ایپ آپ کو بتا دے گا کہ صحیح تلفظ کیا ہے. تو یہ معاملہ آنے والے دنوں میں ٹیچر کے لیے اور آسان ہو رہا ہے
कि आप अपने स्टूडेंट को ज़्यादा अच्छी तरह से इन बातों को बता सकेंगी। तो मैं इस मौके से सिर्फ इतना कि अगर आपको तलफ़ुज़ के इमला के हवाले से नारंग साहब वाली जो किताब आखिर बार आई थी, वो नारंग साहब का काम नहीं है, काम पहले से हो रहा था, उसको उन्होंने तरतीब दे के फाइनल कर दिया है। कौमी कौंसिल के अल्फाज का वो जमा है, उस पर अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात कि ये जो नई टेक्निक है वो इम्कानात को बढ़ा रही है। मुझे उम्मीद है आप टीचर हैं, आपको सुनाने की आदत है, यहाँ सुनना पड़ गया, माफ़ कीजिएगा, और मेरा वक्त भी हुआ। खुदा हाफिज़। भी इसके शौर का हिस्सा बन चुके होते थे। बहुत सारे अल्फाज मकतब में दाखिल होने से कल उसके शौर का हिस्सा बन चुके होते थे, इसलिए मकतब की किताबों की अल्फाज की सोच से वह बहुत हद तक पहले ही मानूस हो चुके होते, लिहाजा हरूफ व अल्फाज शनासी में उन्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन पिछली कुछ दहाइयों से मादी वसाइल ने जहाँ इंसानों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा कर दी हैं, वहीं बहुत से नुकसानात भी ज़ाहिर हो रहे हैं। मौसीकी की धुन और स्कीम की मनाजिर ने तिब के जहन कम और जिस्म की हरकत को ज़्यादा फ़ाइल कर दिया। ये मोबाइल की तरफ मेरा इशारा है। इस तरह मकतब तक पहुँचने तक उसके कुंबे और पास पड़ोस की लफ्ज़ियात, गाने की लफ्ज़ियात और किताब की लफ्ज़ियात में बहुत होता गया। इस वजह से तिब मकतब के लिए किताबों की लफ्ज़ियात मुश्किल नज़र आने लगी और मेहनत तलब साबित होने लगी। अब स्कूल और उसके असातिज़ा की बात करें तो उनका हाल ये है कि दरसी किताबों के बहुत से अल्फाज मानी व मफ़हूम ही नहीं, तलफ़ुज़ से भी बेबहर है। करनी बेहतर होगी। पहले की माएँ नोरियाँ और नज़मों को गाकर अपने शेरखान बच्चे को पढ़ाया करती थी। 5-6 साल की उम्र तक बच्चा अपनी माँ, बहन या घर की मोहम्मद ख़ातिन या बुजुर्गों की गोद में तामीर अखलाक और किरदार को मुफ्ती हकायतें, रसूल अंबिया, सहाबा और इस्लामी तारीख़ के हीरोज़ के हालात व वाक़यात सुनता था। किस तरीके से पूरा पस मंज़र चेंज हो गया वो देखिए। मुख्तलिफ़ वर्गों की मुख्तसर या तवील बहरों के रवानी और गहराइयों से बच्चे का जहन गैर शौरी दौर से ही वाकिफ़ हो जाता था। नज़्मों में इस्तेमाल होने वाले हरूफ की हरकत व सुकून और उसकी अदायगी से आहिस्ती मानूस हो चुकी होती है। ये सेमिनार हमने जो मुनक़्क़िद किया है उसमें सभी लोग आने की वजह से हमने ये 100% हमने इसमें कामयाबी हासिल किया है। जिस मकसद से सेमिनार हमने मुनक़्क़िद किया वो मकसद हमको हासिल हुआ और उससे ज़्यादा हम सबका कोऑपरेशन की वजह से ये हम कामयाबी हासिल कर सके और ये 100% कामयाब रहा। शुक्रिया। आपका नाम? मेरा नवीदुल सहर, मराठवाड़ा कॉलेज ऑफ एजुकेशन के इंचार्ज प्रिंसिपल हूँ जो उनमें से बेशतर का तलफ़ुज़ लटका रहा होता है, हालांकि उनमें से बेशतर शायद वो अधिक तख्ती लटकाए हुए होते हैं। बचपन से लिए उम्र के आखिरी पड़ाव तक उन्हें यह तौफ़ीक़ नहीं होती कि लुग़त का मुताला करें या कभी अल्फाज पर आसानी कर लें जो उनके रोज़मर्रा ही नहीं लाशऊर का भी हिस्सा बन चुके हों। इन्हीं सब लफ्ज़ियात और तलफ़ुज़ात के सीने से लगाए उनके तलबा भी मुस्तक़बिल की से रवां हैं। स्कूल से कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक अपने असातिज़ा के इस विरसे के साथ सफ़र करते हैं। कॉलेज की दहलीज तक पहुँचने वाले उर्दू ज़रिए तालीम के ज़्यादातर तलबा का उस्ताद बनना होता है। इसके अलावा और देखिए, दो बातें। मैं दिल्ली से चलने से पहले मराठवाड़ा कॉलेज ऑफ एजुकेशन डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया कैंपस से जब इस मौजू के बारे में बात हुई, ख़ासकर जिसमें जामियात के उर्दू तदरीस के मसाइल और इम्कानात की बात है, ये मेरा बड़ा महबूब मशगला है उर्दू ज़बान की तदरीस के हवाले से। तो ये एक मौजू ऐसा है जो वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। दूसरी बात, चूँकि हम दूर के रहने वाले हैं, उस दिल्ली के रहने वाले हैं जहाँ से इसी औरंगाबाद शहर से कभी कोई पहुँचा दिल्ली और दिल्ली वालों को उर्दू की तरफ राग़िब किया था, तो एक ये भी पहलू है। आज हम आते हैं, एक मिली जुली कैफियत हमारी होती है अहले औरंगाबाद से मिल के, इस शहर के लोगों से मिल के। एक तरफ ये खुशी भी होती है कि शहर में अदीब शायर जो रहे हैं, उनकी जो तारीख़ रही है, उसको नई नस्ल भी किसी हद तक आगे ले के जाने की कोशिश करती है। और जो मसाइल हैं जहाँ जहाँ, जिसकी तरफ आज के इजलास में भी बात की गई, उन मसाइल पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपने अपनी तकरीर में उर्दू के मुस्तक़बिल के हवाले से बहुत सारी मुस्बत बातें बताई जी। तो आज़ादी के बाद से आज तक का सफ़र और मुस्तक़बिल कैसा देखते हैं? मैं हमेशा, देखिए, इस पर बहुत डिबेट होती है, बहुत सारी बातें होती हैं उर्दू के मुस्तक़बिल के हवाले से। मैं यही बात कहता हूँ कि कोई शख्स लखनऊ में बैठा है या औरंगाबाद में बैठा है, वो गुलबर्गा में है या पटना में है, अपनी मकामी सतह पे चंद लोगों को देख करके कोई फ़ैसला कर देता है कि उर्दू यहाँ ख़त्म हो रही है, उर्दू मर रही है। मैं एक ऐसा शख्स हूँ जो उर्दू का जो इंटरनेशनल मंजरनामा है, उर्दू का जो
बन अवी मंजरनामा है उस पर भी नज़र है, और गांव देहात के कस्बात पे भी मेरी नज़र है। उर्दू ज़बान मर नहीं रही है, उर्दू ज़बान मरेगी नहीं। ये मैं जज्बाती तौर पे नहीं कह रहा हूँ, हक़ाइक़ की रोशनी में कह रहा हूँ। आपको सिर्फ एक मिसाल दे सकता हूँ। मैं औरंगाबाद टाइम्स के दफ्तर में गया था, जो किसी शहर से एक अखबार निकलता है। मुझे मालूम हुआ कि 54 साल से वो अखबार निकल रहा है। मुझे मालूम हुआ कि 1 साल लॉकडाउन के ज़माने में भी अखबार निकलता रहा। दिल्ली से 2 ऐसे अखबारात का जिक्र कर दूँ, एक इनकलाब और एक सहारा नाम लेकर के कहता हूँ। एक एक अखबार के 13-13, 14-14 एडिशंस निकल रहे हैं। मैंने वो वक्त भी आज से 25 साल पहले देखा है जब दिल्ली से ही एक कौमी आवाज़ नाम का अखबार निकलता था। उसको देख के, उसकी शक्ल सूरत देख के यूँ लगता था कि जैसे मुफलिस की जवानी, जैसे बेवा का शबाब। अब आपके कलर पेजेस पे 16 पेज के उर्दू के अखबार निकल रहे हैं, तो क्या मंगल ग्रह से कोई लोग आते हैं उसको पढ़ने के लिए? क्या वो घाटे का सौदा कर रहे हैं? क्या सुब्रत राय सहारा को पागल कुत्ते ने काटा था? नहीं। इसका मतलब ये है मार्केट मौजूद है। रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म, ये तमाम चीज़ें। एक और बात ज़हन में रखनी चाहिए कि ज़बानें भी अपनी शक्लें बदलती हैं, तो ज़बान जो शक्ल बदलती है उस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। जो चीज़ आप पहले 200 किताबें छपती थी, वो PDF फॉर्मेट में अगर वही किताब आज 2000 लोग पढ़ ले रहे हैं, तो आप उसको काउंट करना पड़ेगा आपको। और इस तब्दीली को, इस तग़य्युर को हम रोक नहीं सकते। आज आपके पास चैनल है, आप YouTube के ज़रिए कुछ बातों को, अभी यहाँ बात कर रहे हैं, आप औरंगाबाद में बैठे हुए हैं, और इन बातों को अमेरिका में बैठा हुआ आदमी इससे चंद लम्हों के बाद देख ले रहा है। तो ये उर्दू की बात उस तक पहुँच रही है। तो ये जो नई टेक्निक है, नई टेक्नोलॉजी है, इसके हवाले से भी उर्दू को फरोग़। तो उर्दू जिंदा है या मर रही है? मर नहीं रही है, मर नहीं। उर्दू ज़िंदा है, उर्दू ज़िंदा है, उर्दू ज़िंदा है। अब जो लोग उर्दू जिंदा रहेंगी, उर्दू जिंदा रहेगी, उर्दू ज़िंदा भी रहेगी, उर्दू ज़िंदा भी है। अब ये कि उर्दू से क्या मुराद है उर्दू ज़िंदा रहने से? उर्दू जब हम बोल रहे हैं, उर्दू में बात कर रहे हैं, उर्दू में अखबारात निकल रहे हैं, उर्दू में किताबें छप रही हैं, दूसरे मुल्कों के लोग उर्दू पढ़ रहे हैं, ठीक है। उर्दू मर कहाँ गई है? कौन कहता है कि उर्दू मर गई है? हाँ, मसाइल को मरना नहीं कहते, या तो ये हद मसाइल को मरना नहीं कहते। आपको सर्दी जुकाम हो जाए तो आप सर्दी जुकाम की दवा करेंगे या कहेंगे मर गए? मरना नहीं कहते हैं इसको। बीमारियाँ लाहक हैं, उन बीमारियों पे वक्तन फ़ौक्तन सबसे पहले तो अपनी बीमारी को पहचानना होगा, फिर मुनासिब डॉक्टर के पास जाना होगा, मुनासिब इलाज कराना होगा। उर्दू के साथ उसकी बीमारियाँ हैं, उर्दू के साथ उसके मसाइल हैं, उन्हीं मसाइल पे बात कर रहे हैं। उनमें तदरीस की जो मसाइल हैं उस पर भी एक बात हो रही है। ये बात आपका इसमें गिरामी? मेरा नाम शफी अयूब है। मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में उर्दू पढ़ाता हूँ, उर्दू मास कम्युनिकेशन भी पढ़ाता हूँ, एक सहाफ़ी हूँ पेशे से, और यही मेरा